So, hello friends. Once again, this is Rahul, and I am coming with some another concepts of financial planning. And this is one of the exercises which really can help you out while calculating uh, percentage top up of SIPs. किस SIP amount से start करना है? What must be the rate for desired goal? These are the basic calculations which you'll be able to do with the goal-seek formula. So I'll take an example in front of you. Let's say you assume something. Let's say you are starting an SIP 5,000 rupees. 12% आपने rate assume किया है. Top up आपने 8% assume किया है. Top up is what? But every year you will be increasing your SIP with, let's say, 8%. What I am going to do that as per the desired corpus of the client, you will be able to know that starting with 5,000 rupees, what must be my top up every year. या फिर टॉप अप 8% है, किस SIP अमाउंट से स्टार्ट करना है, या फिर टॉप अप 5,000 है, टॉप अप SIP 5,000 है, टॉप अप परसेंटेज 8% है, व्हाट मस्ट बी द रेट. सो ऐसे भी करके आप बैक टेस्टिंग से अपने गोल के हिसाब से आप इन सब कैलकुलेशंस को कर सकते हैं. लेट्स से नंबर ऑफ इयर्स इज 5. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ टेबल ऑफ 5 इयर्स लाइक दिस. प्लीज प्रोसेस को पूरा ध्यान से देखिएगा सो दैट यू कैन मेक इट टेबल, यू कैन मेक ए कैलकुलेटर एट योर डेस्कटॉप्स फॉर 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, जो भी आप चाहें. 5,000 rupees is my first year SIP amount. Next year SIP amount will be 5,000 into 1 plus this top up percentage. So basically what I am doing, that I am increasing the previous amount with 8%. But since it is going to be 8% every time, I'll have to lock it. How to lock it? Function को दबाते हुए F4 दबा दीजिए, या अगर आप ये काम नहीं कर रहा है तो आप बेसिकली अल्फाबेट, जैसे B4 सेल नंबर है तो B के आगे पीछे डॉलर लगा दीजिए हाथ से, इट विल वर्क. नाउ यू कैन सी दैट आई हैव SIP contributions of all 5 years here, राइट? अभी देखिए डॉलर लगाने का फायदा क्या है, अगर मैं इसे यहाँ 10% करूंगा तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा. तो मुझे ये सीक्वेंसिंग डालनी है कि मैं यहां चेंज करूं, यहां चेंज हो जाए. तो 8% किया, अपने आप फिगर चेंज हो गए. तो ऑटोमेटिकली नाउ फिगर्स आर चेंज. अब हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात ये है, अब मुझे पता करना है कि 5,000 रुपीज का SIP का वैल्यू 12 महीने बाद क्या होगा. I would advise you to all of you to please go through my TVM video to understand how I am converting the rate, because this rate is annual rate and I have to convert this rate into months rate. मुझे इसे महीने में कन्वर्ट करना होगा. उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नॉमिनल 12% 12 divided by 12. So nominal में basically what I have done, I have removed the compounding from this 12% and then converted into a month's rate. For understanding this, आपको मेरे TVM की वीडियो पे जाना पड़ेगा, वहां से आपको समझ में आएगा कि रेट्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है. अगर आपको मेरा रेट कन्वर्जन देखना है कि हाउ टू कन्वर्ट ए रेट, यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड सी कि रेट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है. यहाँ I cannot divide directly 12% by 12. I have to convert this rate into a month's rate. For converting that, I need to put a formula called nominal. 12%, 12 divided by 12, right? So मैंने compounding हटाया, then I have divided by 12. So just what I've done, I have basically calculate per month's return. क्योंकि if I'm putting money per month, I need the per month return. 12% divided by 12 नहीं कर सकता, that will be 1%, and 1% अगर मैं per month मानूंगा तो 12 महीने के बाद वो 12% को क्रॉस कर जाएगा. That's why it is not 1% per month, it is less than 1%. Now, what I need to do, I need to create a future value here. Rate is this. I log this rate because मैं जब डाउनवर्ड ड्रैगिंग करूंगा तो फिर ये नीचे वाला सेल लेगा, नीचे वाला सेल लेगा, जबकि मुझे हर बार यही रेट चाहिए तो मैंने डाउन कर दिया. NPR will be 12. NPR will be 12. 12 times I am putting 5,000 rupees. Minus PMT is what? This is my regular payment. तो PV अगर आप देख रहे हैं तो PV is nothing but it's a one time investment and PMT is a regular investment.
present value 0 and type 1. This is the value of after 12 months. बट आपको तो 5 साल के एंड का वैल्यू चाहिए. एक बार दोबारा फॉर्मूला लगा दीजिए और फॉर्मूले को समझाइए, या फिर एक काम कर सकते हैं आप, इसको सिर्फ ड्रैग करिए ऐसे के ऐसे. तो ड्रैग करने में क्या होगा, अब इसने आपको 5400 का वैल्यू दे दिया है कि 5400 को अगर मैंने 12 टाइम्स इन्वेस्ट किया है तो इस रेट से क्या होगा. लेकिन यहां जो प्रेजेंट वैल्यू 0 है, इसमें आप माइनस लगाकर पहले वाला बैलेंस भी सिलेक्ट कर लीजिए. पूछिए क्यों? क्योंकि when you are going to the 5-year end balance, don't you think that you have to take the first year end balance also into consideration? एक साल का एंड का जो बैलेंस है वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा ही ना, तो वो सेकंड ईयर के बैलेंस में जुड़ेगा. थर्ड बार क्या होगा, देखिए जब मैं थर्ड टाइम इसको ड्रैग करूंगा, यहाँ पे जब मैं नीचे लेके आऊंगा, इस वाले सेल पे ये 5832 का एसआईपी भी चलाएगा और सेकंड ईयर के एंड के बैलेंस को प्रेजेंट वैल्यू में एक साल आगे भी ले आएगा. सो ऐसे करने के लिए, टेबल बनाने के लिए, यू हैव टू ऑलवेज कीप योर प्रीवियस बैलेंसेस एट द प्लेस ऑफ PV along with your SIP, but both are with minus sign. Please understand, minus sign because both are invested. Now you drag it. After 5 years, this will be your fund value with this given figures. अब देखिए, story begins here. Now you have a calculator. Let's say if I say 10,000, value will automatically change. If I put rate 10%, value will automatically change. If I say top up is 5%, आप ये समझिए कि मान लीजिए कि मुझे क्लाइंट सेज दैट आई वांट 15 lakhs after 5 years. I want to start with 10,000 rupees. मेरे पास देने के लिए उतना ही है, आप तो टॉप अप परसेंटेज में चेंज कर दो. देखिएगा, आप अपने लास्ट वैल्यू पे जाइए जो आपने ऐसे कैलकुलेट किया है, और एक फॉर्मूला होता है डेटा में जाकर व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक. दोबारा बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, डेटा में जाइए, पर यहां पे आपको पहले सिलेक्शन रखना है अपना. डेटा में जाकर व्हाट इफ एनालिसिस, देन गोल सीक. सेट सेल, आपको इस सेल में चेंज चाहिए, तो वो सेट हो गया. कितना वैल्यू करना है, आई वांट 15 लाख. 1 2 3 4 5. बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में बदलाव चाहते हैं आप? आई वांट चेंज इन माय top up percentage. Press OK. You can see automatically the value has changed and your top up percentage has changed. उसने ये बता दिया कि 15 लाख रुपए बनाने के लिए 37% से आपको टॉप अप करना पड़ेगा. चलिए जी, I want to keep my top up वही 5%, तो दोबारा वही वैल्यू आ जाएगा जो पहले था. बट आई वांट 15 lakhs, ये श्योर है. तो भाई ऐसा कर रहा हो कि इस सेल को 15 लाख बना दो, बट आई डोंट वांट टू चेंज इन टॉप अप परसेंटेज. एसआईपी कहां से स्टार्ट करूं? तो बाय चेंजिंग सेल में 10,000 ले आइए. यानी अब वो आपको ये बता देगा कि what must be your starting SIP amount for getting 15 lakh. See this, 17,752 का SIP चलाएंगे तो अपने आप 15 लाख रुपया बन जाएगा with top up of 5% every year after 5 years. मान लीजिए, दोबारा उसी चीज पे आ जाता हूं. अब सिचुएशन ये है कि नहीं जी 10,000 ही करना है, 5% चाहिए टॉप अप में भी, तो अभी क्या करें? वैल्यू 15 लाख कर दें. अब अपन रेट में चेंज मांग लेते हैं कि भैया रेट में बताओ कितना चेंज करें. तो रेट में आप बाय चेंजिंग सेल में आप रेट सेलेक्ट कर लो. 35% का रेट चाहिएगा. सो दिस इज बेसिकली a small exercise which you can do for calculating different rate, top up percentage, starting amount of SIP
for a desired number of corpus for the client. I hope this video will be useful for you. Thank you very much.